بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ اجلاس ہوا۔ پنجاب حکومت نے نئے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 کے مسودے کی منظوری دے دی۔ کابینہ نے 11 ٹول پلازوں کو ختم کرنے، گندم کی ریلیز پالیسی میں 2 ماہ کی توسیع، پروونشنل اسمبلی آف دا پنجاب استحقاق بل 2022 کی منظوری بھی دے دی۔ پنجاب حکومت سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار پر مہربان ہو گئی۔ عثمان بزدار کو سابق وزیر اعلیٰ کے لیے مخصوص پروٹوکول اور مراد کے لیے بھیجی گئی سمری منظور کر لی گئی۔ پنجاب کابینہ نے سابق وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کو مراد کی منظوری کے لیے بھیجی گئی سمری منظور کر لی۔ سابق وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کو ایلیٹ پولیس کی 2 گاڑیوں سمیت مناسب سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو 5 پرسنل سٹاف پر مبنی عملہ فراہم کیا جائے گا۔ عملے کے ان 5 افراد میں سے 2 کم سے کم گریڈ 17 کے افسران ہوں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ اور ان کے اہل خانہ کو طبی سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی۔ سابق وزیر اعلیٰ اور ان کی فیملی پنجاب حکومت کے تمام ریسٹ ہاؤسز استعمال کر سکیں گی۔ حکومت کے متعین کردہ دیگر مراعات اور سہولیات بھی سابق وزیر اعلیٰ اور ان کی فیملی کو دی جائیں گی۔ لاہور تعلیمی بورڈ انتظامیہ کی غفلت، میٹرک عملی امتحان اور انٹرمیڈیٹ تھیوری کے پرچے آؤٹ ہو گئے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے معاملے پر انکوائری شروع کر دی۔ لاہور تعلیمی بورڈ انتظامیہ کی غفلت کے باعث 2 مضامین کے پرچے آؤٹ ہو گئے۔ میٹرک کے عملی امتحان اور انٹرمیڈیٹ تھیوری کا پرچہ آؤٹ ہوا۔ میٹرک کیمسٹری کے عملی امتحان کا آج کا پرچہ 1 دن پہلے ہی آؤٹ ہو گیا، جبکہ انٹرمیڈیٹ کیمسٹری کا پرچہ کل صبح 5 بجے آؤٹ ہوا۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے انکوائری کا فیصلہ کر لیا۔ بورڈ ذرائع کا کہنا ہے کہ انٹرمیڈیٹ کیمسٹری کا پرچہ دوبارہ لیے جانے کا امکان ہے۔ دوسری جانب بورڈ حکام نے واقعے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ کوئی پرچہ آؤٹ نہیں ہوا، تمام افواہیں بے بنیاد ہیں۔ لاہور ایئرپورٹ پر طیارے کے ساتھ پرندے ٹکرانے کا ایک اور واقعہ۔ شارجہ سے لاہور آنے والی قومی ایئر کی پرواز PK 258 کے انجن کے ساتھ پرندہ ٹکرا گیا۔ پائلٹ نے کمال مہارت سے طیارے کو رن وے پر لینڈ کرایا۔ طیارے میں 150 سے زائد مسافر سوار تھے۔ لاہور ایئرپورٹ پر PIA کے جہاز سے پرندہ ٹکرا گیا۔ پرندہ ٹکرانے پر جہاز کی لاہور ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ۔ ایئرپورٹ حکام کے مطابق PIA کی پرواز PK 258 شارجہ سے آئی۔ لینڈنگ کے دوران جہاز کے انجن سے پرندہ ٹکرا گیا۔ کپتان نے مہارت دکھاتے ہوئے 168 مسافروں کے ساتھ جہاز کو ایئرپورٹ پہ اتار لیا۔ پرندہ ٹکرانے سے جہاز کا انجن ناکارہ ہو گیا۔ کراچی سے PIA انجینئرنگ کی ٹیم لاہور آنے پر طیارے کے نقصان کا اندازہ لگایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق 2 ہفتے کے دوران لاہور ایئرپورٹ پر 4 سے زائد طیارے برڈ ہٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ CAA نے بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے ایئر لائنز کو خود احتیاط برتنے کا نوٹم بھی جاری کیا تھا۔ والدین کے لیے نیا امتحان، ڈالر کے مقابلے میں روپے کی غیر مستحکم صورتحال نے کاغذ کی قیمتوں کو بھی آسمان پر پہنچا دیا۔ کاپیاں، رجسٹر، کتابوں کی تیاری میں استعمال ہونے والا کاغذ 15 روپے مزید مہنگا ہو گیا۔ کاغذ مہنگا ہونے سے کتابیں، کاپیاں مزید مہنگی ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ انتہائی مہنگائی میں بچوں کو تعلیم کیسے دلوائیں، والدین پریشان۔ کاغذ 210 روپے ریٹ تھا، اب 250 روپے ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے کتابیں انتہائی مہنگی ہو گئی ہیں۔ جو 200 روپے کی کتاب ہے وہ 500 میں سیل ہوگی، ٹھیک ہے، بچوں کے پہنچ۔ جب میں ریٹ پوچھ کے جاتا ہوں تو اس وقت کہتے ہیں یہ ریٹ ہے، جب لینے آتا ہوں پتہ لگا کہ یہ قیمتیں پھر بڑھ گئی ہیں۔ اب ہم کہاں جائیں؟ بچوں کو پڑھانے کا مسئلہ ہے، لازمی بات ہے، کاروبار ہے نہیں ہے۔ خاص طور پہ کاغذ جو بالکل ہماری تعلیم میں اہم رول ادا کرتا ہے، وہ کاغذ اس قدر زیادہ مہنگا ہو چکا کہ ناقابل بیان ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کاغذ نہیں، یہ آئل اور گھی کا شعبہ ہے کہ جس کے ریٹ سے بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ ملک معاشی بھنور سے نکلنے لگا، ڈالر کی قیمت میں بڑی کمی۔ انٹر بینک میں ڈالر 4 روپے 70 پیسے کمی کے بعد 207 روپے 23 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 211 پر آ گئی۔ سونے کے دام بھی نیچے آ گئے، 1300 روپے سستا، 1 تولہ سونا 1,41,000 روپے کا ہو گیا۔ ڈالر کی اونچی اڑان تھم گئی، روپیہ تگڑا اور ڈالر کمزور پڑنے لگا۔ انٹر بینک میں ڈالر 4 روپے 70 پیسے کمی سے 207 روپے 23 پیسے کا ہو گیا۔ گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 211 روپے 93 پیسے پر بند ہوا تھا۔ معاشی ماہرین کے مطابق پاکستان اور IMF کے معاہدوں کی خبروں پر روپیہ تگڑا ہو گیا۔ ماہرین کے مطابق 2.30 ارب ڈالر آئندہ چند دنوں میں ملنے کا امکان ہے۔ ذخائر بڑھنے سے روپے کی قدر میں بہتری ہوگی۔ دوسری جانب ڈالر کی قیمت میں کمی کے بعد سونے کی قیمتیں بھی کم ہونے لگیں۔ سونے کی قیمت میں 1300 روپے کی مزید کمی کے بعد مجموعی طور پر سونا 6000 روپے تک سستا ہو گیا۔ قیمت میں کمی کے بعد خالص 24 کیرات فی تولہ سونا 1,41,000 روپے، 22 کیرات فی تولہ سونا 1,29,260 روپے، جبکہ 21 کیرات فی تولہ سونا 1,23,275 روپے میں فروخت ہوا۔ بڑی عید کی بات کریں گے۔ عید الاضحیٰ قریب آتے ہی شہر کے مختلف مقامات پر مویشی منڈیاں لگنا شروع ہو گئیں۔
सगियां मवेशी मंडी में भी मंडी सजाने के लिए तैयारियां जोर पकड़ गईं। ईद कुर्बा की आमद सगियां के मकाम पर मवेशी मंडी लगाने के लिए तैयारियां जारी हैं। इक्का दुक्का व्यापारियों ने बाड़े कायम कर लिए, जबकि मजीद बाड़े लगाने के लिए रेत और मिट्टी के जरिए जमीन की सतह को हमवार किया जा रहा है। जानवरों के पीने के पानी के लिए होदियां बनाई जा रही हैं। मंडी आने वाली सड़कों पर लाइट टावर्स लगा दिए गए। मंडी में बड़े जानवरों की खरीदारी के लिए आए शहरियों ने कीमतों में होशरुबा इजाफे का शिकवा किया। हमारा बजट 3.5 लाख है, लेकिन ये लोग 9 लाख 10 लाख से नीचे बात ही नहीं कर रहे। छोटा जानवर जो है उसका 6 लाख, जो पिछले साल 1.5 लाख 2 लाख का जानवर था, इस दफ़ा 6 लाख उस जानवर का मांग रहे हैं। महंगाई बहुत हो गई है, लेकिन इन लोगों को चले मजबूरी समझते हैं हम, लेकिन इतनी भी मजबूरी नहीं जितना इन लोगों ने अपने पे वो की भी है। सगिया उस्मान गनी रोड मवेशी मंडी में भी व्यापारियों की जानिब से कुर्बानी के जानवरों के बाड़े लगाने का सिलसिला जारी। ज्यादातर छोटे जानवरों के बाड़े कायम किए जा रहे हैं। व्यापारियों की जानिब से बकरे और छतरे की कम से कम कीमत 80,000 बताई जा रही है, जिसकी वजह से खरीदारों ने तशवीश का इजहार किया है। ये कह रहे हैं पेट्रोल ज़्यादा महंगा है, फलान महंगा है, किराया ज़्यादा है, ये चीज़ें बता रहे हैं। जो 4,000 वाला बकरा है उसका 1,20,000 बता रहे हैं। मेन सगिया रोड से मंडी की जानिब आने वाली तकरीबन तमाम सड़कें तबाहाली का शिकार हैं, जिसकी वजह से मंडी आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ उमर डाज, सिटी 42। सरकारी हस्पतालों से अद्वियात चोरी, मेडिकल स्टोर तक कैसे पहुंची महकमा सेहत को खुफिया हाथों की तलाश। PIC जनरल अस्पताल से इन्फेक्शन, दिल के मर्ज और जोड़ों के दर्द की अद्वियात चोरी हुई। कैंसर और आंखों के अमराज की अद्वियात शामिल। अहमद मेडिकल स्टोर ढोलनवाल से अद्वियात मिली। सरकारी हस्पतालों से अद्वियात चोरी कैसे हुई, मेडिकल स्टोर तक कैसे पहुंची, महकमा सेहत को खुफिया हाथों की तलाश है। PIC जनरल अस्पताल से इन्फेक्शन, दिल के मर्ज और जोड़ों के दर्द की अद्वियात चोरी हुई। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कैंसर के मर्ज में मुब्तला असातिज़ा को इलाज के लिए माली इमदाद देने का ऐलान। माली इमदाद हाजिर सर्विस और रिटायर्ड दोनों असातिज़ा को फराहम की जाएगी। कैंसर के मर्ज में मुब्तला हजारों असातिज़ा, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कैंसर के मर्ज में मुब्तला असातिज़ा को इलाज के लिए माली इमदाद देने का ऐलान कर दिया। माली इमदाद हाजिर सर्विस और रिटायर्ड दोनों असातिज़ा को फराहम की जाएगी। स्कूल एजुकेशन ने मुतासरा असातिज़ा से पाकिस्तान टीचर्स फाउंडेशन के जरिए दरखास्तें तलब कर ली हैं। माली इमदाद के हुसूल के लिए दरखास्तें 25 जून तक जमा कराई जा सकेंगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक कैंसर में मुब्तला असातिज़ा को महकमे की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। महंगाई के इस दौर में ख़वातीन एहसास प्रोग्राम के तहत मिलने वाली इमदाद के लिए ख्वार होने लगी। फ्रेंचाइज मालिकान ने लूट मार का बाजार गर्म कर दिया। एहसास प्रोग्राम के तहत मिलने वाली इमदाद से कट लगाकर 2,000 की बजाय 1,800 जबकि 14,000 की बजाय 12,000 रुपये देने का इंकशाफ हुआ। फ्रेंचाइज की लूट मार के खिलाफ ख़वातीन फट पड़ी, हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। यूहन्नाबाद के इलाके खालिक नगर में वाक़े HBL की फ्रेंचाइज कसूरी मोबाइल के बाहर वफाकी हुकूमत के एहसास प्रोग्राम के तहत मिलने वाले पैसों के हसूल में कम आमदनी वाले घरानों की खातन खार हो गई हैं। सख्त गर्मी में लंबी कतार में लगी सैकड़ों खातन को लूटने का सिलसिला जारी। 2,000 रुपए लेने आई खातन को 200 रुपए काट कर 1,800 जबकि 14,000 लेने के लिए आने वालों को 12,000 रुपए दिए जाने लगे। सैकड़ों खातन फ्रेंचाइज मालिक के खिलाफ फट पड़ी। 200 रुपया जी बेटा जी काट दे पे ने 1,800 हर बीबी ने दे ने पे, वो भी बड़े तक्या तुक्या नाल ही। 14 मिला था, उसमें 3,000 रुपया काटा था इन लोगों ने। तो अब 2,000 मिलिया, 1,800 मिलिया, 100 रुपया किराया ला के 8 बजे के आके इधर धूप में खड़े में, अभी तक कोई चक्कर नहीं है। एहसास प्रोग्राम के तहत मिलने वाली रकम के हसूल के लिए आई खातन का कहना था कि कोरोना वबा के दौरान भी मिलने वाली रकम से फ्रेंचाइज मालकान ने कट लगाया और अब भी फ्रेंचाइज मालिक पूरी रकम नहीं देते। कतार में लगी खातन का कहना था कि हुकूमत एहसास प्रोग्राम की शफाफियत के लिए इकदाम उठाते हुए फ्रेंचाइज मालकान की लूटमार का नोटिस ले। हमारा 2,000 का मैसेज आया और मैं 1,800 रुपया दे रहे। पिछली दफा भी आया था 14,000 का, तो 12,000 दिया है। हमारा हुकूमत से ये रहा है कि किस बात के काट रहे हैं हमारे पैसे। पसमानदा तबके से ताल्लुक रखने वाली खातन से हुकूमती इमदाद की रकम लूटने वालों के खिलाफ हुकूमत को सख्त इकदाम करने की जरूरत है। कैमरामैन राना मशहूद के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के मुलाजमीन ने MS के नारवा सलूक पर OPD का बाइकआउट कर दिया। मुलाजमीन MS के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। OPD बंदिश के बायस दूर दराज से आए मरीजों का इलाज न हो सका। दिल के मरीजों को बेयारो मददगार वापस लौटना पड़ा।
पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के मुलाजमीन ने MS के नारवा रवैये के खिलाफ काम छोड़ हड़ताल की। OPD बंद होने से दिल के मरीज ख्वार होकर रह गए। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि MS फरूक अहमद मुलाजमीन को हरासा करते हैं। MS के नारवा सलूक की वजह से 2-3 मुलाजमीन को हार्ट अटैक हो चुका है, जबकि MS खुद तो वक्त पर आते नहीं और हमें रात 2 बजे तक भटाकर बाहर से लोग बुलाकर फाइलें मंगवाते हैं। MS ने ड्यूटी चेंज की है, मैंने सबको पता भी है, ये हार्ट पेशेंट है, ठीक है, शुगर का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, मगर सुबह हम लोग 8 बजे ड्यूटी पे आते हैं, रात 1 बजे तक हमें ड्यूटी करनी पड़ती है, जबकि हमारा जो MS साहब है वो 12-1 बजे के बाद आते हैं। उसके बाद जो अहम मसला है कि हमारी जो फाइलें हैं वो प्राइवेट बंदे चेक कर रहे हैं, जो कि कह ले कि इधर से कोई बंदे को खड़ा करें, यार इसकी फाइल चेक करें, वो आगे से मुख्तलिफ किस्म के इशारे करता है कि भाई ये फाइल ऐसे नहीं होगी, ये ऐसे ही होगी। स्ट्रेस की वजह से हमारे 2 कोलीग्स हैं, उनको हार्ट अटैक हुआ है और हार्ट अटैक होने के बाद वो एमरजेंसी में एडमिट। एक अख्तर साहब हैं, दूसरे हमारे खलील साहब हैं परचेज ऑफिसर। कल वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस काम की वजह से ले गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक हुआ है और उन्हें हमें एमरजेंसी में एडमिट करवाना पड़ा है। एहतजाज के बायस इलाज और अद्वियात लेने की गर्ज से आए सैकड़ों मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इतनी ज़्यादा पब्लिक इत्थे कि दवाइयां पूरियां नहीं हो रही, जिसले 2 बजते हैं उसले कहते जाओ जी कल आना। हज़ारां मरीज सैकड़ियां के हिसाब नाल मरीज़ां नूं रोलदे ने, इन्हां नूं कोई शर्मो हया ही नहीं है कि असी इत्थे मरीज चेक करिए, अपनी प्रॉपर ड्यूटी करिए। अक्सर हड़तालें हुई होती हैं, आज भी हम सुबह से आए हुए हैं, कोई दवाई नहीं दे रहे, कोई कुछ नहीं दे रहे। दिन का जब अख्ताम होने को आया तो तब जाकर इंतजामिया को होश आया। CEO PIC बिलाल महिउद्दीन से कामयाब मुज़ाकरात के बाद मुलाजमीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। आए रोज यंग डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर मुलाजमीन के एहतजाज करते और सजा गरीब मरीजों को भुगतना पड़ती है। मरीजों ने वज़ीर पंजाब और महकमा सेहत से इनकी दाद रसी की दरख्वास्त की और इन हड़तालों पर कोई जामिया लाहेमल बनाने की दरख्वास्त की। कैमरामैन शाहिद के साथ अजमत अवान, City 42। PTI हुकूमत मोनस इलाही पर मेहरबान रही। शुगर कमीशन इंक्वायरी के बावजूद नोटिस जारी हुआ, ना मुकदमा दर्ज किया गया। टारगेट रहे तो शरीफ खानदान और जहांगीर तरीन। शुगर कमीशन रिपोर्ट्स को सियासी मकासद के लिए कैसे इस्तेमाल किया गया। मोनस इलाही को भेजा गया सवालनामा भी मरहूम डॉक्टर रिजवान की जानिब से तैयार किया गया था, जो उस वक्त ना केस खुला ना ही सवाल पूछे गए। वफाकी तहकीकाती इदारे की इंक्वायरी सियासी इत्तेहादियों को बचाने और मुखालिफिन को जेर करने के लिए इस्तेमाल होती रही। शुगर कमीशन रिपोर्ट्स पर इंसाफ की दावेदार तहरीक इंसाफ हुकूमत खुद भी न्यूट्रल न रह सकी। FIA जराये के मुताबिक शुगर कमीशन रिपोर्ट्स पर FIA के साबिक डायरेक्टर मरहूम डॉक्टर रिजवान ने मुतअद्दिद केसेस तैयार किए, लेकिन सियासी मकासद आड़े आए और शरीफ खानदान और जहांगीर तरीन के नाम मुकदमा दर्ज करने का कुरा निकाला गया। मोनस इलाही से बाज प्रस हुई, ना कोई मुकदमा दर्ज किया गया। FIA जराये के मुताबिक मोनस इलाही को दिया जाने वाला तफसीली सवालनामा भी डॉक्टर रिजवान की तहकीक पर मबनी है, लेकिन तहरीक इंसाफ हुकूमत में उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। शुगर कमीशन रिपोर्ट्स पर आप मोनस इलाही नामजद मुलजम बने तो वही सवालनामा उन्हें दिया गया जो तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में वफाकी तहकीकाती इदारे के अफीसर कारपोरेट क्राइम की पेचीदगियों की निशानदेही करके तश्कील दे चुके थे। FIA में मनी लॉन्ड्रिंग केस का मामला। मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर मोनस इलाही ने अपने वकला के जरिए FIA को तहरीरी जवाब जमा करा दिया। उधर FIA ने मोनस इलाही की प्रॉपर्टी और बिजनेस की मालूमात के लिए मुख्तलिफ इदारों को मरासला जारी कर दिया। FIA में मनी लॉन्ड्रिंग केस का मामला। साबिक वफाकी वजीर मोनस इलाही ने अपने वकला के जरिए FIA को तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। FIA ने 35 सवालात पर मुश्तमिल एक सवालनामा मोनस इलाही को दिया था और 23 जून तक जवाब जमा करवाने की हिदायत की थी। मोनस इलाही 4 जुलाई तक मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर हैं। FIA हुकाम का कहना था कि मोनस इलाही की तरफ से जमा करवाए गए जवाबात का जायजा लेने के बाद ही FIA नया लाहे अमल तैयार करेगा। दूसरी जानिब FIA ने मोनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमे की तफ्तीश का दायरे कार वसी कर दिया है, जिसके तहत FIA ने स्टेट बैंक समेत महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन LDA, कमिश्नर लाहौर और गुजरात को मरासला जारी किया है, जिसमें मोनस इलाही की मनकूला और गैर मनकूला जायदादों और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात तलब की गई हैं। मरासले के मुताबिक जौहर टाउन, गुलबर्ग, इकबाल टाउन समेत दीगर पोश इलाकों में 10 प्रॉपर्टीज की तफसीलात महकमा हाउसिंग और LDA से तलब की गई है। बागों में गंदगी फैलाने वाले हो जाएं अब होशियार। हाई कोर्ट ने बागों में कूड़ा करकट फेंकने वालों को जुर्माना करने का हुक्म दे दिया। अदालत का DGPHA को मानसून में पौधे लगाने का हुक्म और LDA को छतों पर पौधे, सोलर पैनल न लगाने वाली इमारतें सील करने की हिदायत।
जस्टिस शाहिद करीम खान ने हारून फरूक की दरखास्त पर समाअत की। महकमा माहौलियात की जानिब से डिप्टी डायरेक्टर अली एजाज DGPHA समेत दीगर पेश हुए। जुडिशल वाटर एंड एनवायरनमेंट कमीशन के जानिब से कमाल अली हैदर एडवोकेट ने रिपोर्ट पेश की। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि मोटरवे पे आलूदगी पैदा करने वाले ईंटों के भट्टों के बहुतात है। महकमा माहौलियात मानसून के बाद इन भट्टों के खिलाफ कार्रवाई करे। जस्टिस शाहिद करीम ने DGPHA से कहा कि आप भी मानसून के मौसम में शजरकारी मुहिम शुरू करें और इस पे शहरियों को शामिल किया जाए। DGPHA ने बताया कि मानसून में फलदार और मुकामी पौधे लगाने का मंसूबा है। जस्टिस शाहिद करीम ने DGPHA की रिपोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि दुनिया माहौलियाती मसाइल का शिकार है और इसमें आपका अदारे की अहम जिम्मेदारी है। अदालत ने DGPHA से कहा कि अगर अदालती हदायत पर नहीं चल सकते तो तबादला करा लें। DGPHA ने बताया कि उन्होंने 2 हफ्ते पहले ही चार्ज संभाला है। अदालत ने कहा कि तमाम अदारों के लोग संजीदगी के साथ इस इशू पर अदालत की मावनत कर रहे हैं। आपकी वजह से कारकर्दगी मुतासर हो सकती है। आपका हर समाअत पर नुमाइंदा कोर्ट में मौजूद हो। अदालत ने DGPHA को पब्लिक पार्क्स में गंदगी फैलाने वाले शहरियों को 200 रुपए जुर्माना करने का हुक्म दिया है। अदालत ने केस की समाअत आइंदा जुमेरात तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में सेफ सिटी कैमरों के जरिए ई टिकटिंग चालान गैर कानूनी करार देने के फैसले के खिलाफ हुकूमती अपील पर समाअत। 2 रुकनी बेंच ने सेफ सिटी कैमरों के जरिए ई टिकटिंग चालान गैर कानूनी करार देने के फैसले पर ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया। अदालत ने पंजाब हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील में फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस असद जावेद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत की। पंजाब हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अख्तर जावेद ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंगल बेंच ने जिस दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया इसमें पंजाब हुकूमत को फरीक ही नहीं बनाया गया। सेफ सिटी एक्ट 2016 एक स्पेशल लॉ है जिसके तहत का निज़ाम रेगुलेशन में वाज़ेह है। मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 116A का तस्करा सेफ सिटी रेगुलेशन 2016 में मौजूद है। ई टिकटिंग के जरिए ट्रैफिक का निज़ाम सेफ सिटी कैमरों के जरिए कंट्रोल करना गैर कानूनी जुमरे में नहीं आता। जस्टिस असद जावेद ने कहा, कानून में तरमीम के बगैर कैसे सेफ सिटी कैमरों के जरिए ई चलान कर सकते हैं। लॉ अफसर ने जवाब दिया, सिंगल बेंच ने ई टिकटिंग के चलान के इकदाम को कलअदम करार दे दिया, इसलिए तरमीम नहीं कर सकते। जस्टिस अली नजफी ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि सिंगल बेंच ने डायरेक्शन दी है कि ई चलान के लिए कानून में तरमीम करे। एडिशनल एडवोकेट कार चोरी की वारदातों में चोरों के साथ 5 पुलिस एहलकार भी मुलव्विस निकले। 500 पुलिस एहलकार समेत 13 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान पुलिस यूनिफॉर्म में कार और मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्विस पाए गए थे। 8 गैंग्स गिरफ्तार किए हैं इन 20 दिनों में, जिनके मुलजमान की तादाद 21 है और 4 करोड़ 70 लाख मालियत की 13 गाड़ियां और 165 मोटरसाइकिलें पकड़ी गई हैं, जिनमें से एक बरामदा गाड़ी तकरीबन 2.25 करोड़ की है। मैं इस पे पूरी टीम को शाबाश देता हूं, बहुत अच्छी इनकी कारकर्दगी है। 2 गैंग्स इनमें ऐसे हैं, जैसे अब्बास खान जो स्नैचर गैंग है, ये पुलिस के साथ जब भी इनका आमना सामना हुआ है, ये गोलियां चलाने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। पंजाब काबीना में तौसी का मामला दूसरे मरहले में पंजाब काबीना के मजीद वज़रा का 27 जून को हल्फ उठाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पंजाब काबीना में दूसरे मरहले में 20 से ज़ायद वज़रा के हलफ उठाने और काबीना में 5 मुशीरों को भी शामिल किए जाने का इम्कान है। आइंदा हफ्ते 27 जून को वज़रा के हलफ उठाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान वज़ीर खजाना का हलफ उठाएंगे। बिलाल यासीन वज़ीर खुराक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, सैफुल मलूक खोखर भी वजारत का हलफ उठाएंगे। ज़राए के मुताबिक मखदूम उस्मान महमूद, महर इजाज चलाना, मलिक अहमद अली औलख, जुगनू मोहसिन, मियां यावर जमान, बेगम ज़किया शाहनवाज और खलील ताहिर सिंधु भी वजारतों का हलफ उठाएंगे। मुस्लिम लीग नून NA 127 बागबानपुरा मरकजी ऑफिस में इजलास MNA अली परवेज मलिक और MPA चौधरी शहबाज अहमद ने सदारत की। हल्के में मसाइल के हल समेत ज़िमनी इंतखाबात में कारकुनान की ड्यूटीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग नून NA 127 बागबानपुरा मरकजी ऑफिस में इजलास हुआ। MNA अली परवेज मलिक और MPA चौधरी शहबाज अहमद ने सदारत की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वालिदा के इसाले सवाब के लिए सदर विमेन विंग पंजाब समीना खालिद घुरकी की जानिब से घुरकी हाउस डिफेंस में कुरान खानी का एहतमाम किया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वालिदा के इसाले सवाब के लिए दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया।
صدر ویمن ونگ پنجاب سمینہ خالد گھرکی کی جانب سے گھرکی ہاؤس ڈیفنس میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر صدر لاہور نرگس خان، مسز ناصرہ شوکت، مسز عرفان، صغیرہ اسلام، عقیلہ یوسف، ناہید اما سحر، طلعت ندیم، گوہر جمال، عشرت سلیم، سمر بطول، زینب بھٹی سمیت خواتین کارکنان شریک ہوئیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔